آپ سب کا بہت شکریہ. آج ہمارا تحریک کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. گجرانوالہ میں، پنجاب کے دل گجرانوالہ میں ہمارا پہلا جلسہ ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آج لالہ موسیٰ میں موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلہ کا قیادت انشاءاللہ تعالی میں خود کر رہا ہوں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو ساتھ لے کے جلسہ گاہ میں، گجرانوالہ کے جلسہ گاہ میں آج رات ضرور پہنچیں گے. اور جو یہ رژیم ہے اس وقت عمران کا سلیکٹڈ حکومت کو گجرانوالہ کا عوام کے آواز پہنچائیں گے جو وہ میڈیا کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں، جو وہ کسی اور فورم کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج پاکستان کے سارے حقیقی جمہوری جماعتیں، سارے پاکستان کے نمائندے ایک سٹیج پہ اور ایک پیج پہ ہے اور عمران خان کا بغلات، عمران خان کا گھبرات آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب کے سامنے ہے. عمران خان صاحب جو کرونا کے پیک پہ لاک ڈاؤن کا مخالفت کرتا تھا، آج اس کو کرونا کا خیال آ چکا ہے. میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈز کیے جا رہے ہیں، FIR کاٹے جا رہے ہیں. گجرانوالہ کا ہمارا جو سٹی پریزیڈنٹ ہے، دار صاحب ہے، اس کے گھر پہ حملہ ہوا. اعجاز سما صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ گجرانوالہ پہ بھی FIR کاٹا گیا. ہمارا آصف بھاگت صاحب کا مندی بھاؤڈین کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، اس کا گھر کا، اس کا تو پورا گاؤں کا گھیراؤ کیا گیا. یہ آپ کو ذرا ایک اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہو کہ وہ جو وزیر اعظم کہتا تھا، اس نے اپنا پہلا سپیچ میں کہا تھا کہ احتجاج کرنا چاہتے ہو، دھرنا دینے چاہتے ہو، ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے. اس نے تو ہمارے راستے میں کنٹینرز رکھ لیے ہیں. مگر کان کھول کے سن لے خان صاحب، آپ بھوک پہ FIR نہیں کاٹ سکتے، آپ بے روزگاری کو قید نہیں کر سکتے، آپ عوام کے ناراضگی کو، عوام کے جذبات کو نہیں قید کر سکتے. اور انشاءاللہ تعالی آج رات گجرانوالہ میں پاکستان کے عوام کا سمندر آپ کو جواب دے گا کہ وقت آ چکا ہے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو جس نے ہمارا عوام کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا کسان کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا مزدور اور نوجوان کا جینا حرام کر دیا، اس کا جانے کے وقت آ چکا ہے. ہم پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنیں اور یہ جو مذاق پاکستان کے ساتھ 70 سال سے چل رہا ہے، جو جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے، جو عوام کی طاقت کو نہیں مانتے، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بن کے اس سوال کا آخری جواب دے دے کہ پاکستان جمہوریت بنے گا، پاکستان کے عوام غلام نہیں، آزاد شہریوں ہے، ان کے حق ہے، ان کے حقوق ہے، ان کے آپ کو ان کے جو مینڈیٹ ہوتا ہے، جو ان کا آواز ہے، جو ان کا طاقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2020 میں بھی غیر جمہوری جو کوششیں ہیں وہ آج بھی جاری ہے. ایک جلسہ برداشت نہیں ہوتا. اور گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی پری پول ریگنگ شروع ہو چکا ہے. وہاں اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی، میں آج سے وارن کر رہا ہوں، اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی تو پاکستان کا سب سے زیادہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. گلگت بلتستان گوادر کا گیٹ وے ہے. اس قسم کا دھاندلی ہم برداشت نہیں کر سکتے.
आप देखिए, मेरा कैंडिडेट है नगर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जावेद हसन साहब। उसको वहां का ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ये नगर में दो भाई है, एक हमारा जावेद हसन साहब है और एक उसका भाई है। जावेद हसन साहब और उसका भाई एक ही कंपनी में है, और जावेद हसन और उसका भाई दोनों इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। फर्क ये है कि एक भाई पीपल्स पार्टी से और एक भाई पीटीआई से। तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो उसी कंपनी उसी भाई के साथ है वो तो नाअहल, और पीटीआई का उम्मीदवार को लड़ने दे रहे हैं। ये तो वही ट्रेलर है जो हमने 2018 में देखा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे, सीपैक पे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपसे वार्न कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान, मैं हर इलाका में जाऊंगा, मैं आपका इलेक्शन को खुद मॉनिटर करूंगा, अपना कैंपेन को खुद लीड करूंगा। और अगली धांधली हुआ, अवाम की आवाज नहीं माना गया, अवाम का मैंडेट नहीं माना गया, तो हम इलेक्शन के दूसरा ही दिन गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे कि आप उनके हकूक पे सौदा नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नारे नहीं लगाते। रुको, बात कर रहे हैं। साथियों, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जदोजहद लड़ते हुए जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, अवाम के हकूक के लिए जदोजहद हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हमने अपने क़यादत से लेकर कारकुन तक की कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि कुर्बानी हमने काफ़ी दिया है। अब आपको हमारा खून के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है इस मुल्क के अवाम का मसाइल हल करने के लिए। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की एक तारीख है, भी तहरीक चली। आखिरी मार्शल लॉ लगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर इत्तेहादी नवाज शरीफ के खिलाफ डीडीए और अपाई साथ बनाकर तहरीक चला रहे थे। नतीजे में मार्शल लॉ लग गया। अब भी ये सिग्नलिंग हो रही है कि कोई तीसरी कुव्वत आएगी। कैसे यकीनी बनाएंगे कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लगे, सिस्टम डीरेल ना हो, और जो आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ भी मिल जाए और नए इंतखाबात भी हो, ये कैसे मुमकिन बनाएंगे? चेयरमैन, इसी में एक हिंदी ले लें। एक सवाल अगर मैं ले सकता तो बेहतर होगा। इमदाद सुमरू साहब, आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये वादा किया गया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा, पाकिस्तान के अवाम आज़ाद होंगे, उनके आइनी हकूक़ होंगे, और उनका वादा जो कायदे आज़म का वादा था, हम आज तक उस वादा को पूरा नहीं कर सका। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अवाम को आवाज़ दिया, मेहनत कश को हुकूक दिया, उसको शहीद कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम की आवाज़ बनी, पार्टी की परचम बुलंद की, जमहूरियत की जदोजहद लड़ी और उसको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि इस जमहूरियत की जदोजहद में कीमत बहुत भारी है, और हमारा पूरा कोशिश होगा कि इस मुल्क को, मेरे नौजवान कारकुनों को उस आमिराना दौर को फिर से नहीं देखना पड़ा। और हम कभी नहीं देखना चाहते हैं कि जो ज़िया-उल हक के वक्त में होता था वो फिर से हो जाए। मगर साथ साथ हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक सेलेक्टेड के नाम पे, एक कठपुतली के नाम पे एक जाली जमहूरियत चलाया जाएगा। हम समझेंगे कि ये हमारे कारकुनों के साथ,
जिन्होंने कोरे खाए हैं, जिन्होंने जानें दी हैं, उनके खून के साथ नाइंसाफ़ी होगा कि हम इस कठपुतली, नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत को जमहूरी मानें। हम इसलिए इस तहरीक पे निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान सेलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को जब अवाम का ताकत उनको नज़र आएगा, अवाम के मुतालबात नज़र आएंगे, तो वो अवाम के मुतालबात पे मानेंगे, जमहूरियत बहाल करेंगे, सेलेक्टेड का सहूलतकार बनना बंद करेंगे, ताकि हम अवाम का मसाइल हल कर सकें। ये लाला मूसा के मकामी साहब प्रेस क्लब की तरफ से वेलकम करते हैं, कुछ आमदीद कहते हैं। थैंक यू भाई। मियां साहब ने जो एपीसी के पहले इजलास में जो तकरीर की थी कि हम इमरान को लाने वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे, आप इस बयानिए से मुतफिक हैं? दूसरा कि आज कौमी असम्बली का और सेनेट में इजलास भी उन्होंने रख लिया, वो कोई कानून पास कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज बुलाया गया है, ये फिर से एक मजाक हो चुका है। हमारा पार्लियामान को जो सबसे बड़ा फोरम है जहां अवाम का मसाइल हल होना है, वहां उनको उस इदारा को इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से ज़बरदस्ती धांधली करवा के फैटिफ का लेजिस्लेशन पास करवाया गया, और इमरान खान चाहता है कि हमारा पार्लियामान, हमारा नेशनल असम्बली उसका जलसा गाह बने, और वो इतना बुज़दिल है कि वो सिर्फ़ तकरीर करता है जब मैं मौजूद नहीं हूँ, वो सिर्फ़ तकरीर करता है जब अपोजिशन के डेस्क खाली है। तो आज भी शायद यही उसका कोशिश होगा। वादा तो किया था कि हर वेंसडे में आऊँगा, आपका सवाल का जवाब दूंगा। आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वादा किया था कि ये जमहूरी तरीके से चलेगा। आज तक एक इसने जमहूरी रवायत कायम नहीं रखा है। और स्पीकर साहब को, इमरान खान को इस हमारा जो पार्लियामान है इसको जलसा गाह में इस्तेमाल करने को इजाज़त नहीं देना चाहिए, जबकि हमारा पार्लियामान का सेशन 19 अक्टूबर पे वैसे ही बुलाया जा रहा है। अगर वो ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान के लिए 16 पे हमारा नेशनल असम्बली सेशन इसलिए बुलाएगा ताकि वो जलसा का तकरीर कर सके, तो वो अपना कुर्सी का, अपना ओहदा का भी तौहीन करता है। तो इस पे हम मज़म्मत भी करते हैं। जहाँ तक इमरान खान के लाने वालों के ख़िलाफ़ जो जदोजहद हमने लड़ना है, हमने हमेशा, आज से नहीं, कल से नहीं, पिछले 5 साल से नहीं, हमारे पार्टी की बुनियाद से ले के आज तक हमारा यही जदोजहद है, यही हमारा कोशिश रहा है कि इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हो, कि इस मुल्क में हर इदारे अपना ही काम करे, कि हमारा फ़ौज को पोलिंग स्टेशंस के बजाय हमारा बॉर्डर्स पे होना चाहिए, हमारा चीफ जस्टिस और जजेस को डैम्स बनाने के बजाय हमारा आवाम को इंसाफ दिलवाना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को अपने आप को, अपने इदारों को मजाक बनाने के बजाय हमारे आवाम का मसाइल हल करना चाहिए। ये हमारा मौका है। पीडीएम की जो तहरीक है, एक मकसद तो उसका हुकूमत का खात्मा है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या मकासद है बाकी, मतलब वो भी अगर पब्लिक के सामने हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुतालबात है, वो पब्लिक के सामने है। वो हमारा APC का जो डॉक्यूमेंट है, जो APC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाया था, जिस पे सारे जमातें ना सिर्फ इकट्ठे हुए मगर हमारा जॉइंट रेजोल्यूशन निकला था, और इसमें हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमारा टारगेट्स क्या है, हमारा गोल्स क्या है, और हम उसी रास्ते पे चले हैं जो ARD और COD का मिशन था, जो MRD का मिशन था, और आज हम इस सिलेक्टेड निज़ाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे उसी तरीके से चल रहे हैं। कौन?
फैसल हसन चौहान का कहना था कि जो स्टेज मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। हमारे ग्राउंड में लगाया और कुर्सियों में काफी ज्यादा है अच्छा, मैंने तो ये सर आप मैं तो अभी तक मैंने खुद जलसा नहीं देखा, मगर मुझे ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल हमें सियालकोट से लेके लाला मूसा पहुँचने में 3 घंटे लगे थे। आपको पता है कि ये रास्ता इतना लंबा नहीं है। मरियम शरीफ साहिबा भी लाहौर से निकल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना काफ़िला का क़यादत कर रहा है। मैंने सुना था कि कल रात से हमारा जलसागाह तो भर गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान को नज़र आएगा कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे गुजरेवाले में हैं और एक आदमी एक तरफ इस्लामाबाद में बैठा है। फैसला अवाम को करना पड़ेगा, अवाम को करना पड़ेगा कि उनके मसाइल कौन हल कर सकते हैं। चेयरमैन साहब, जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसका हल बातचीत के जरिए होता है। अपोजिशन में किस पार्टी को ये मैंडेट हासिल है कि कोई ऐसी नौबत जब आएगी तो वो बातचीत करेगी? हमने उसी नौबत का या ऐसे कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, बट आई डू एग्री विद यू कि हम जमहूरी लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है। तो जहाँ एहतजाज, जहाँ धरना, जहाँ पार्लियामान में जो हमारा प्रोसीजर्स, वो सारे के सारे हमारा जमहूरी टूल किट के टूल्स है। तो डायलॉग भी जमहूरियत की और जमहूरी टूल किट की एक टूल है जो जमहूरी पार्टीज अपनाते हैं। बिलावल साहब, ये डायलॉग से होगा जो अपने दायरा कार से बाहर निकल गए हैं या वो जिनको आप सिलेक्टेड कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? आप इधर आए हो? अभी मैंने आपको देखे हैं। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये हमेशा से रहा है। हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं। हम इसका सोच ही नहीं सकते कि हम पार्लियामान को घर भेजें। हम चाहते हैं कि सारे के सारे जमहूरी तरीके अपनाया जाए, हम अपना एहतजाज का तरीका अपनाया जाए, हम अपने नो कॉन्फिडेंस के जो जमहूरी टूल्स, आइनी लीगल टूल्स अवेलेबल है, चाहे वो पंजाब के असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो या स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ हो या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो, वो सारे अपनाया जाए, वो सारे एग्जॉस्ट किया जाए। फिर हम इस किस्म के, अगर हम नाकाम तब भी रहे, फिर हम इस किस्म के एक्सट्रीम पोजीशंस पे भी मजबूर होकर सोच सकते हैं। आवाज हो रहा है पीडीएम की तहरीक का, तो ये बताइएगा कि आज हम भी इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से लेके लाला मूसा तक रास्ते में सिर्फ एक जगह पर हमने पीपल्स पार्टी का कैंप देखा और एक जगह पर हमने नून लीग का कैंप देखा। कोई कैंप नहीं था, कोई बैनर्स हमने नहीं देखे। ऐसी तहरीकों में अमूमन बैनर्स। मैं आपको बस आपका बहुत शुक्रिया। मैं को एडवाइस दूंगा आपको कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या कवर करने के लिए एक दिन से पहले ज़रूर पहुंचा जाए, और फिर आपको नज़र आता कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन मगर नून लीग के कारकुन पूरा पंजाब में बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स, कैंप्स तो लगाते रहे, लेकिन उनके पीछे पीछे वो गैर सियासी पंजाब की पुलिस, जिनके 6 IGs तब्दील हो चुके हैं, वो उनके पीछे पीछे इमरान का टाइगर फोर्स बन के FIRs काट रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेकिन आपको नज़र आएगा, आपको गुजरांवाला में नज़र आएगा, अब रास्ते में नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं और इमरान खान कहाँ खड़ा है। एक मिनट यार, एक मिनट, इस तरह नहीं। जो अब जलसे कर रहे थे कि बाद क्या हिकमत में होगी अगर ये ना ही गई। ये तो हुकूमत अब इतना बुखला चुका है, इतना हिल चुका है, और हमारा पहला जलसा भी नहीं हो चुका है, और अब खुद कह रहे थे कि हर दिन कोई हुकूमती रहनुमा TV पे है, इमरान खान दूसरा स्पीच करके कहीं कहीं जाके रो रहा है, बुखलाहट का शिकार है। अगर कोई टॉपिक है तो PDM का जलसा, अगर हुकूमत का एजेंडा है, वो तो नहीं कह रहे कि हम महंगाई को कैसे कम करें, बेरोज़गारी को कैसे कम करें, हम आवाम के मसाइल को कैसे हल करें। अगर इमरान खान के ज़हन में कुछ है, वो PDM है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो मौलाना फजल रहमान है। तो हम समझते हैं चल एक खातून है उससे लेके फिर आप।
किससे आप डिस्टिंग्विश करने का प्लान? I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry, and we are the only political parties whose founding qiyadat was assassinated, adalti qatl hua isi लड़ाई में, जिसके दूसरा फिर क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी लड़ाई में शहीद हुआ। हमने ये मुसलसल देखा है, आज भी नहीं लेकिन माजी में भी देखा कि एहतजाज भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ हुआ, PNA का मुहिम चला, लेकिन जब सियासी फ़ैसला भी हो चुका था, गैर जमहूरी कदम फिर भी उठाया गया। हम तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा कोशिश रहा है, आगे भी रहेगा कि जैसे हम इस जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने अवाम के जो हुकूक उनका आइन में उनको गारंटी करते हैं वो हम दिलवा सकते हैं, वो हमेशा हमारा जद्दोजहद होगा। लेकिन हम कभी भी नहीं अपना जो पर्सनल विक्ट्री के लिए या कि कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने देंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने देंगे। और आज भी हम समझते हैं कि हमें हमेशा मुसलसल कोशिश करना चाहिए कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए, मगर जितना भी कमज़ोर, जितना भी टूटी फूटी आपकी रही जमहूरियत है, आमरीत से तो बेहतर है। राधा साहब सॉरी डियर राधा साहब, ये सवाल है कि जो PDM के मूवमेंट है जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अवाम में ये राय है कि ये इसको लीड कर रही है अफगानियों को नहीं दे, तो आप क्या समझते हैं पंजाब में इस राय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वफाक में आप उस सतह पे जा सकेंगे कि अगली बारी नून निकलेगी या पीपल्स पार्टी? और दूसरी तरफ इदारों के साथ भी टकराव हो रहा है इसके साथ साथ, तो इस सिनेरियो में आपका क्या आगे कार होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? जहाँ तक बयानिया है, हम सब अवाम की बयानिया लेके निकले हैं और साथ साथ हर जमात का अपना मंशूर भी है, हर जमात का अपना मंशूर भी है और हमारा मंशूर इन इश्यूज़ पे जिनके लिए हम आज चल रहे हैं वो तो 1970 से लेके आज तक वही है और 1970 से लेकर अब तक वही है। हम चाहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से पुरअमन तरीके से ये जो जद्दोजहद है ये इसमें हम कामयाब रहें और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान के सहूलतकार को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान पे जो नुकसान हो रहा है, अवाम जो बोझ उठा रहे हैं, इमरान खान इज़ नॉट वर्थ इट। डेमोक्रेसी, our country, our society is at stake and हमें सब मिलकर इसका हल करना है और इसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। साकी साहब, यूनुस साकी साहब, एक मिनट जी मेरे भाई। हेलो आप बैठे। यूनुस साकी साहब, अब हम एहतजाजी इत्तेहाद हैं। जब ARD भी बना था तब भी हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस लड़ रहे थे और आज हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए एक पेज पे खड़े हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा पे, और कल हम आमने सामने होंगे, इलेक्शंस भी लड़ रहे होंगे। ये जमहूरियत का तरीका है, ये जमहूरियत का एक रवायत है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों हैं जिनका अपना मंशूर है। मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, ANP, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, हमारा सबका अपना मंशूर है, अपना तारीख है, मगर एक पॉइंट एजेंडा पे कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहाल होना चाहिए, हमारा आवाम को आज़ाद करवाना चाहिए, आवाम को जो हकूक़ हमने वादा किया है आइन में उनको दिलवाना पड़ेगा। उस हद तक हम सब एक है। When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, तो फिर हम आमने सामने भी लड़ेंगे। एक मिनट आपकी तरफ आ रहे हैं साकी साहब, यूनुस साकी साहब। अच्छा चले, एक सर एक आपका सवाल साकी और हो चुका।
चीमा साहब मैं बताता हूँ, आप लोकल लाला मूसा के हैं, आपका हक है, बिल्कुल आपको सवाल देते हैं। यूनुस, 1 मिनट भाई, बेटा आपका काम नहीं है, यहाँ प्रेस की बातें हो रही हैं। मेरे कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी, आम आदमी, अगर आपने जुल्म करना है तो हम सब है, बड़े बड़े कायदीन आपके सामने हैं, मगर आप हमारे गरीब कारकुन पे इस किस्म का जुल्म, तरीके इंसाफ जिसका नाम है, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई, Government goes back on what? अगर इमरान खान हुकूमत पीछे हटती है तो अपोजिशन की क्या असेंबली होगी इसके बाद? Sorry? सर कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर जाती है तो फिर अपोजिशन की फिर क्या अगली असेंबली होगी? फिर अपोजिशन को अवामी हुकूमत बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स फोरम करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के अवाम को फैसला करने दे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे, उनके मसाइल कौन हल करेंगे, उनके नुमाइंदे कौन बनेंगे। जी चीमा साहब, चीमा साहब, चीमा साहब, आप चीमा साहब बताओ ना, चीमा साहब लोकल नहीं, हम सर अगर हम अपना एजेंडा पे, अपना मकसद पे कामयाब होते हैं, जमहूरियत बहाल होता है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तो आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF भी आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे। ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है। जी अफजाल, पटी साहब आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हुआ पहला आपका सवाल। चलो सब पहले जो कहेगा कि आपने तमाम अदारों का तो अपनी हदूद में रहकर काम करें, नहीं लेकिन पिछले अखबार में जब साबिक अखबार में कोई जो एहतजाज है वो गुजरांवाले ख़त्म हो जाता था, कोई इस्लामाबाद ख़त्म हो जाता था, तो काइंडली जब आप तमाम मुतहदा अपोजिशन इकट्ठी होगी तो ये एहतजाज कहाँ ख़त्म होगा? हमारा एहतजाज, अगर हमारा जो प्लान है जो हमने आपके सामने रखे हैं, उसका वाज़ेह एक स्केड्यूल है, जिसमें अगर हमारे मुतालबात एक हद तक, एक वक्त तक नहीं पहुँचे तो हमारा रुख तो इस्लामाबाद ही होगा। लेकिन मैं समझता इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो कि हमें तो इस्लामाबाद तक पहुँचना नहीं पड़ेगा, इस्लामाबाद से बहुत ही पहले ये हुकूमत घर चले जाएगी। थैंक यू।